Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. My brothers and my sisters, greeting you all in the name of our Lord Jesus Christ. Now we will read Isaiah chapter 53 verse 1 to 6. I will read in Urdu and in English. Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ? For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness. When we see him, there is no beauty that we should desire him. पर वो उसके आगे कौंपल की तरह और खुशक जमीन से जड़ की मानंद फूट निकला, ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती। जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। He is despised and rejected by men, a man of sorrow, acquainted with griefs, and we hide as it were our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. वो आदमियों में हकीरो मरदूद और मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई, हमने उसकी कुछ कदर न जानी। Surely he has borne our griefs and carried our sorrow. Surely he has borne our griefs and carried our sorrow. Yet we esteemed him stricken, smitten by God and affected. तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। Hallelujah. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him. By whose stripes we are healed. By his stripes we are healed. हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। Hallelujah. Praise God. Hallelujah. But he was wounded for our transgressions, and he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him. By his stripes we are healed. हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। हालेलुया। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। By whose stripes we are healed. Hallelujah. All we like sheep have gone astray.
All we like sheep have gone astray, and we have returned to everyone his own way. The Lord has lightened on him the community of us all. Hallelujah. The Lord has lightened on him the community of us all. हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी हम पर ला दी। हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। माफ कीजिएगा। यहां पर 3 बड़ी खूबसूरत बातें हम देखते हैं, बल्कि 4 बातें। Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ? और जो कोई खुदा के पैगाम पर ईमान लाता है, खुदा के पैगाम को कबूल करता है, उस पर खुदा का बाजू जाहिर होता है, खुदा का बाजू उस पर ठहरता है, खुदा का हाथ उस पर ठहरता है, और वो खुदा के हाथ के नीचे सुकूनत करता है, खुदा के हाथ के नीचे बरकत पाता है। हालेलुया। दूसरी बात, surely he has borne our griefs and carried our sorrow. Hallelujah. Surely he has borne our griefs and carried our sorrow. तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमारे गमों को बर्दाश्त किया, उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, but he was bruised for our, but he was wounded for our transgressions. Hallelujah. He was wounded for our transgressions, and he was bruised for our iniquities. Praise God. Hallelujah. The chastisement for our peace was upon him. Hallelujah. By his stripes we are healed. हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। हालेलुया, प्रेज गॉड। नंबर 4, the Lord has lightened on him the community of us all. हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। बदकिरदार हम थे, हमने गुनाह किए,
हमने गलतियां की। वी वर सिनर, but the Lord has laid on him the iniquity of us all. हम गुनाहगार थे और हम सब की बदकिरदारी खुदावंद खुदा ने उस पर ला दी ताकि हम सलामत रहें, हम सलामत रहें। हालेलुया। That's why Holy Bible tell us, for the message of cross, for the message of cross, foolishness to those who are perished. For the message of the cross, foolishness to those who are perished. But to those who saved, it is the power of God. Hallelujah. इसलिए लिखा है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। हालेलुया। For the message of the cross, foolishness to those who are perished, but to those who are saved, it is the power of God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Message of the cross, power to us. Power to us. Praise God. Don't worry about the temptations. Don't worry about the suffering. Don't worry about the problems. Whatever comes from the world, by the name of Jesus Christ, don't worry. Don't worry. When we read 1 Peter chapter 2 verse 21 to 24, there is so beautiful things, our encouragement. जब हम पतरस के खत का मुताला करते हैं, पहला पतरस और उसकी 21वीं आयत से 24वीं आयत तक, हमें वहां बहुत सी बातें हमारी तसल्ली के लिए मिलती हैं, हमारे हौसले के लिए मिलती हैं, हमारी तरक्की के लिए मिलती हैं। हालेलुया। वहां पर लिखा है, फॉर टू दिस यू आर कॉल्ड, तुम इसीलिए बुलाए गए हो। फॉर टू दिस यू आर कॉल्ड, तुम इसीलिए बुलाए गए हो। Because Christ also suffered for us. Because Christ was also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. That you should follow his steps. तुम इसीलिए बुलाए गए हो। मसीह भी तुम्हारी खातिर दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया, उसके नक्शे कदम पर चलो, उसके नक्शे कदम पर चलो।
क्या नमूना वो दे गया है। What is the step of Jesus Christ that you should follow his steps? Let us see what is the step of Jesus Christ. आओ हम देखें यीशु ने क्या नमूना दिया है, यीशु के क्या नक्शे कदम थे। आइए हम देखें। पहला पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, 22वीं आयत, माफ कीजिएगा। ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। Who committed no sin, nor deceit found in his mouth. Hallelujah. Who committed no sin, nor deceit found in his mouth. ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। यह था यीशु का नमूना। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, who when he was reviled, he did not re-evil in return. वो गालियां खाकर गाली नहीं देता था, वो गालियां खाकर गाली नहीं देता था। When he suffered, he did not threaten. वो दुख पाकर किसी को धमकाता नहीं था, दुख पाकर धमकाता नहीं था। But he committed himself to him who judges righteously. Hallelujah. This was step of Jesus Christ. ये था यीशु का नमूना, जिसके ताल्लुक से पौलुस रसूल ये लिखता है, पतरस रसूल ये लिखता है, St. Peter said, "For to this you are called." तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। Because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. Hallelujah. मसीह भी तुम्हारी खातिर दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया। उसके नक्शे कदम पर चलो। उसका नक्शे कदम क्या था? वो सब कुछ बर्दाश्त करता, सब कुछ सहता, जो भी उस पर खुदा के नाम पर गुजरती, सब कुछ सह जाता, बर्दाश्त करता और अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम देखते हैं कि सच्चे इंसाफ करने वाले ने उसके साथ क्या किया। जब वो बल्कि एक और बात हम सीख के आगे चलेंगे। जब हम 24वीं आयत का मुताला करते हैं, वर्स 24, 1 Peter chapter 2 verse 24, who himself bore our sin in his own body to the cross,
the cross. Hallelujah. From the cross. That we haven't died to sin, might we live by righteousness, by whose stripes you were healed. Hallelujah. Hallelujah. लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाह के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हालेलुया। हम गुनाह के एतबार से मर गए, रास्तबाजी के एतबार से जिंदा हो गए, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। इसीलिए तो लिखा है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। That's why written, for the message of the cross, foolishness to those who are perishing, but to those who are saved, it is the power of God. It is the power of God. Jesus Christ himself bore our sin in his own body on the cross. Hallelujah. That we having died to sin, might we live by righteousness. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. जिस तरह यीशु ने हमारे गुनाहों को उठाया, हमारे गुनाहों को उठाया, हमारे गुनाहों का बोझ उठाया, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम भी एक दूसरे का भार उठाओ, तुम भी एक दूसरे का भार उठाओ। और फिर यीशु मसीह ने यह भी कहा कि अगर कोई अपनी सलीब ना उठाए, अपनी खुदी का इनकार ना करे, तो वो मेरे लायक नहीं, वो मेरे लायक नहीं। और सलीब का मतलब क्या है? दुख, अपने दुख। और हम अपने दुख भी खुद उठाएं और दूसरों के भी उठाएं, अपने बहन भाइयों के भी उठाएं। कई दफा होता है कि हम अपने दुख भी नहीं उठाना चाहते, अपने दुख भी हम दूसरों पर डालते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी दूसरों पर डालते हैं। लेकिन आओ हम एक दूसरे का भार उठाएं, जैसा कि लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। As I love you, Jesus said, as I love you, love each another. Love each another. जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और जब हम फिलिपियों के खत का मुताला करते हैं, तो फिलिपियों के खत में हमें बड़ी खूबसूरत बातें मिलती हैं। फिलिपियंस चैप्टर
chapter 2. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Yeah. Verse 1 to 11. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy, being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit. बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में है, अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिलजमी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो। यकदिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। तफरीके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो। बेजा फख्र के बायस, तफरीके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो। But in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। Let each of you look out not. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Hallelujah. Also for the interest of others. Hallelujah. हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि तुम अपना ही सही नहीं ख्याल करते रहो, बल्कि दूसरों का भी ख्याल करो। जिस तरह मसीह ने आपका ख्याल किया, हमारा ख्याल किया, हमारा बोझ उठाया, इसी तरह हम भी एक दूसरे का बोझ उठाने वाले हों। एक दूसरे का बोझ उठाने वाले हों। मुबारक वो लोग हैं जो एक दूसरे का बोझ उठाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। और फिर अगले हिस्से में लिखे है, लेट दिस माइंड बी विच वाज आल्सो इन क्राइस्ट। लेट दिस माइंड बी विच वाज आल्सो इन क्राइस्ट। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। What was mind of Jesus Christ? Who committed no sin, nor deceit found in his mouth. Who when he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but he committed himself to him who judges righteously. Hallelujah. कैसा था मिजाज यीशु का? ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। वो गाली खाकर गाली नहीं देता था, वो दुख पाकर किसी को धमकाता नहीं था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था।
बल्कि एक और बात हम देखते हैं कि और क्वालिटी क्या थी और उसका मिजाज कैसा था, और उसका मिजाज कैसा था। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। Who, form of God, did not consider it robbery, equal to be with God. Hallelujah. Who, form of God, did not consider it robbery to be equal with God. अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, कब्जा में रखने की चीज ना समझा। और यानी कि उसने बराबरी नहीं की। बहुत दफा हम दूसरों की बराबरी करने की कोशिश करते हैं और मेरे भाइयों और बहनों, हम बराबरी ना करें बल्कि दूसरे को अपने से बेहतर समझें। और फिर इसका और मिजाज क्या था, अगले हिस्से में लिखा है, but made himself no reputation, taking the form of bond servant, coming in the likeness of men. Hallelujah. He humbled himself and come obedient to the point of death, even the death of cross. Hallelujah. This was mind of Jesus Christ. ये था मिजाज यीशु का, ये था नमूना यीशु का जो उसने पेश किया, जिसके ताल्लुक से पतरस रसूल कहता है उसके नक्शे कदम पर चलो, और पौलुस रसूल कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। और जैसा कि यहाँ पर लिखा है, उसने अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। उसने अपने आप को खाली कर दिया, अपनी कुदरत से, अपने पावर से। हम अपनी अना को नहीं छोड़ते, हम अनाप्रस्ती करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आओ हम अपनी खुदी से, अपनी अना से, अपनी बुरी जिंदगी से अपने आप को खाली करके खादम की सूरत इख्तियार कर लें। खादम की सूरत इख्तियार कर लें। जब हम खादम की सूरत इख्तियार कर लेंगे और फिर खुदावंद भी आपको सर बुलंद करेगा, जैसा लिखा है फिर कि यीशु मसीह अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। But he committed himself to him who judges righteously. क्या किया सच्चे इंसाफ करने वाले ने उसके साथ? क्या किया? आइए हम देखें। लिखा है सच्चे इंसाफ करने वाले ने क्या किया। Philippians chapter 2 verse 9. Therefore God also has highly exalted him, given him the name
which is above every name. Given him the name which is above every name. Which is above every name. Hallelujah. देखा इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह को वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है और जिसका कोई सानी नहीं। हालेलुया, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यीशु का नाम कुदरत वाला है, अजमत वाला है, जलाल वाला है। यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधों की आंखें खोलता है, कोड़ियों को पाक साफ करता है, मुर्दों को जिंदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। That at the name of Jesus, that at the name of Jesus, every knee should bow. Every knee should bow. In the heaven, of those in the heaven, and of those on the earth, and of those under the earth. हालेलुया। ताकि हर एक घुटना यीशु के आगे झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं। हर एक मखलूकात का घुटना यीशु के आगे झुकता है और झुकता रहेगा और झुकेगा। और जो नहीं झुकते एक दिन वो भी झुकेंगे। नहीं झुकते एक दिन वो भी झुकेंगे, बल्कि चिल्लाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे और दरख्वास्त करेंगे कि हमें बचा ले। हालेलुया। फिर लिखा है verse 11. Hallelujah. That every tongue should confess. That every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. Hallelujah. The glory of God the Father. ताकि हर एक जबान, हालेलुया, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह है। हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु मसीह आसमान और जमीन का मालिक है। Hallelujah, praise God. Risandar Rabba Kamamana Rabba Nizara Kabaru Kori Bini Kabala. Hallelujah. Hallelujah. That's why written, for the message of the cross, foolishness to those who are oppressed, but to those who are saved, it is the power of God. Praise God. It is the power of God. Let us pray. God bless you all. God bless you all. खुदावन आप सबको बरकत दे. Hallelujah. Hallelujah. God bless you all. Hallelujah.